Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to dive into another important topic that should you choose to work on a product based company or a service based company. So if you hold a multiple offer and if you want to decide that an offer from a service based company or offer from a product based company, and if you're confused like should I choose a service based or a product based company, so this video really gonna help you a lot, that you will understand the pros and cons of a product based versus a service based company. So let's discuss some of the key points that will really help you to choose which company to choose among those. So let's start. So before we begin, let's discuss about what is a product based company and a service based company. So product based company usually work on their own products. So consider an example like a bank or a Colgate or Google, Microsoft. These all comes under a product based company because they work on their own product and they have their internal IT team. So that will create an application or a software. Their own IT team will be working on their own application or a software. So this comes as a product based company. Consider an example like SDFC Bank. So SDFC banks have application UI or backend or front end, for example. So here what they do, they have their own internal IT team that will be working on their own application or a software. So this comes as a product based company because they work on their own products. This is a product based company example. Now consider the service based company, the MNC like TCS, Accenture, Wipro, Infosys example. These are the Deloitte. These are the service based company because they provide services to the customer, like some of the company outsource their project to the other company and this company provide services to them. These companies like the team that will be work on the client side. The client will be can be any, for example it can be a bank or it can be any company. So this service based company will have a client and they will provide a service there. The service based company IT team will provide a services to this other company and this will be the client to them. So this is how the product base and service base is difference among themselves. So this is the product base and service base, the example of the company and their definition. Let's discuss further about the pros and cons of the product based and a service based company. So the first point is the work culture. So let's discuss about the work culture. According to my experience holding a 10 years of IT experience, I worked from a product based as well as a service based company also, and by getting a feedback from my colleagues or friends. So I will share some point regarding the work culture. So according to my experience, product based company don't have a client, right? They have their own internal products, internal projects basically. So sometimes it is very easy to extend the deadline of a project in a product based company because they do consider the situation sometimes and they do offer the extension of a deadline very easily as compared to the client based project that is we have in a service based company. So one is that, and another is here we have their own internal team, right? The product owners, the BAs are within a product company only. So here we don't have a client or as such. So here I feel like my more weightage for a work culture will be over the product based company rather than a service based company, because here we are servicing a client. So sometimes it's like a client is very important to that particular company. In that case we need to extend our times or we need to stretch over the weekends. So work pressure will be more where we have a client side project rather than on a product based company. So for a work pressure, work culture, my weightage will be towards a product based company is a good as compared to the service based company. So this is the first point. Second is the salary. So according to my experience, I feel like the product based company obviously give a comparatively a higher amount of a salary as compared to the सर्विस बेस्ड कंपनी. यहाँ पे सैलरी का परसेंटेज ज़्यादा कभी कभार डिपेंड, लाइक बैंक यूजुअली पे हाई सैलरी एज कम्पेयर टू द सर्विस बेस्ड कंपनी. तो यहाँ पे डेफिनेटली द सैलरी प्रोडक्ट बेस में ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द सर्विस बेस्ड कंपनी. सो अगेन माई वेटेज फॉर सैलरी द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी विल बी मोर एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. So this is the second point.
Third point, let's discuss about hike and employment benefits. So according to me, the product based company में hikes and benefits, employment benefits ज़्यादा रहते हैं. यहाँ पे अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल और ये सब ज़्यादा रहता है. यहाँ पे बिट लेस कंपटीशन होता है प्रोडक्ट बेस में एज कम्पेयर टू सर्विस बेस, क्योंकि यहाँ पे टीम साइज ज़्यादा होती है. प्रोडक्ट बेस में टीम साइज कम होती है, कंपटीशन कम होता है. तो फॉर मी हाइक एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पक्ष क्या वेटेज प्रोडक्ट बेस को ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू सर्विस बेस कंपनी. So this is the third point, like hike and employment benefits. Fourth point about learning and growth. So according to me, product based company work on their own product. So considering a bank for example, so if you work on the bank, आप फॉर एग्जाम्पल 5 साल काम कर रहे हो किसी बैंक में, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा फाइनेंस डोमेन में रहेगा. वो 5 इयर्स के लिए आपको क्रॉस डोमेन या वैसे ये नॉलेज थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रहेगा यहाँ पे. और जो प्रोडक्ट भी है वो आप उसी प्रोडक्ट पे काम करते रहोगे, उसी में एनहांसमेंट रहेगा या उसी में ही कुछ मेजर चेंजेस या मॉडल मॉडिफिकेशन आएगा. बट प्रोडक्ट बेस में नॉलेज थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है. लर्निंग रिगार्डिंग टू द प्रोजेक्ट इज बिट रिस्ट्रिक्टिव एज कम्पेयर टू सर्विस बेस. सर्विस बेस में आपके क्लाइंट्स होते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो फॉर 6 मंथ, तो आपको वो 6 मंथ उस प्रोजेक्ट का नॉलेज आएगा. एंड देन आपको किसी और प्रोजेक्ट में डाल दिया जाएगा, तो वो प्रोजेक्ट फिर और कोई डोमेन में होगा या और कोई एप्लीकेशन में होगा. तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे नॉलेज ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस. So learning and growth on a project perspective, my weightage will be more over the service base as compared to product base. Again it depends, but as example से बताया, तो फाइनेंस डोमेन में आप काम कर रहे हो तो आपका रिस्ट्रिक्शन फाइनेंस डोमेन में ही रहेगा फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स. और यहाँ पे आपको अलग अलग डोमेन का नॉलेज मिलेगा, अलग अलग एप्लीकेशन का नॉलेज मिलेगा. तो सर्विस बेस में डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा उस पर्सपेक्टिव से. तो माई वेटेज विल बी लर्निंग ऑन ग्रोथ को सर्विस बेस पे ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस. The next point is about the client interaction. Definitely product based internal project है. यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर BAs और ये सब इंटरनल ही होंगे, उनके खुद के कंपनी के होंगे. यहाँ पे कोई क्लाइंट इंटरेक्शन या क्लाइंट रहेगा ही नहीं. तो क्लाइंट इंटरेक्शन सर्विस बेस में ज़्यादा होता है. यहाँ पे हमारे क्लाइंट कॉल्स होते हैं. यहाँ पे हमको आइडिया आती है कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करने चाहिए, क्लाइंट के मेल्स कैसे होने चाहिए, क्लाइंट को हैंडल कैसे करने चाहिए. तो ये क्लाइंट इंटरेक्शंस एंड क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन है वो सर्विस बेस में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. प्रोडक्ट बेस में आपको क्लाइंट इंटरेक्शन या क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेट करना है या कोलैबोरेशन करना है वो प्रोडक्ट बेस में नहीं मिलेगा. तो क्लाइंट इंटरेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एज अ लर्निंग. समटाइम इट्स मैटर कि हाँ हमको क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है वो भी सीखना है या कुछ. तो माई वेटेज ऑन क्लाइंट इंटरेक्शन विल बी मोर ऑन सर्विस बेस एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट बेस. So this is another point to discuss. Let's discuss on another point, stability and job security. तो my weightage for stability and job security will be more on a service base as compared to the product base. So I'll give you one example जो मेरे साथ एक कंपनी में हुआ था. उस बेसिस पे मैं और by my colleagues and friends experience also, according to me, स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी सर्विस बेस में ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस. तो फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में काम कर रही थी, प्रोडक्ट बेस कंपनी में आई वाज देयर. एंड जिस टेक्नोलॉजी पे मैं वो काम कर रही थी उनकी ऑलरेडी टीम साइज कम थी. हम हार्डली 3 लोग थे एज अ ऑफशोर डेवलपमेंट टीम और बाकी के 6-7 लोग फ्रॉम ऑनशोर से थे. तो ओवरऑल जो एप्लीकेशन पे काम कर रही थी मैं, उस एप्लीकेशन के टीम साइज हम 12 लोग थे सब मिला के अप्रॉक्स. एंड सडन ऑफ लाइक दे डिसाइडेड कि उनको ये टेक्नोलॉजी को मूव करना है किसी और टेक्नोलॉजी पे, जो भी फॉर एग्जांपल जिस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उनके कंपनी के लिए वो शायद एक्सपेंसिव हो सकती है या उसकी कुछ लिमिटेशन थे. बिकॉज ऑफ दैट दे डिसाइडेड कि हमको ये टेक्नोलॉजी चेंज करना है और कोई और टेक्नोलॉजी पे पूरे एप्लीकेशन को मूव करना है. तो दे स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग मी कि मैं मेरा जो करियर था 5 इयर्स का इस पे छोड़ के नए टेक्नोलॉजी को लर्न करूँ और मैं अपने आप को पूरा नए टेक्नोलॉजी पे डाल दूँ. बट डेफिनेटली आई एम नॉट कंफर्टेबल. मैं ऑलरेडी 5 साल इसी सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी में काम कर चुकी हूँ. ऑलरेडी मैंने सर्टिफिकेशंस और ये सब, मेरा नॉलेज अच्छा है और मेरे हिसाब से मेरे को अपना करियर सेल्सफोर्स में ही कंटिन्यू करना था.
सो बट दे आर आस्किंग मी टू मूव टू द अदर CRM, अदर CRM टेक्नोलॉजी। मेरे को पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच सीखने के लिए बोल रहे थे। ट्रेनिंग वो लोग देने वाले थे 15 डेज या 30 डेज की जो भी है, बट उसके बाद मेरा पूरा काम नए टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाता, सेल्सफोर्स में नहीं रहता। तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। तो ये एक एग्जांपल है, लाइक ऐसे सिनारियोज यहाँ पे प्रोडक्ट बेस में आ सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है, फिर आप माइट भी वो लोग निकाल दे सकते हैं आपको, या फिर खुद से निकलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी प्रोडक्ट बेस में थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू सर्विस बेस। ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बल्क में रिसोर्स रहते हैं। तो कभी कभी बहुत रिसोर्स बेंच पुल में हो जाते हैं, तो माइट भी उन लोग जब भी रिसेशन या ऐसे डेज चलते हैं तो वहाँ पे भी चांसेस है निकलने का, बट कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस थोड़ा कम होता है यहाँ पे सर्विस बेस में। तो स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी के लिए मेरा वेटेज सर्विस बेस में ज़्यादा है। यहाँ पे कैसे आप लोग मतलब एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आप पुल में जा सकते हो, फिर आपको दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, या फिर फॉर टेम्पररी चलो कोई और टेक्नोलॉजी में काम कर भी रहे हो, बट जब आपका टेक्नोलॉजी स्टेबल हो जाएगा तो आप वापस मूव हो सकते हो सर्विस बेस में। तो ये सारे बेनिफिट्स प्रोडक्ट बेस में नहीं होते। तो माई वेटेज फॉर स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी विल बी मोर ऑन सर्विस बेस रेदर देन ऑन अ प्रोडक्ट बेस। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट लेवल ऑफ इंटरव्यूज। डेफिनेटली प्रोडक्ट बेस का थोड़ा इंटरव्यू सर्विस बेस के कंपेरेबल में डिफिकल्ट होता है। अगर आप देखोगे एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब के इंटरव्यूज थोड़े इजी लेवल के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बल्क में रिसोर्स होता है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ इंटरव्यू थोड़ा इजी होता है और यहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन इट डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी पर्सन टू पर्सन, बट हाँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू प्रोडक्ट बेस में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। सो दैट इज एन अनदर पॉइंट। Let's discuss on another important topic, that is about the on-site opportunity. ये काफ़ी लोगों को रहता है कि ऑन-साइट जाना है, तो ये अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो लेट्स सी हम प्रोडक्ट बेस एंड सर्विस बेस। सो प्रोडक्ट बेस में मेरे नॉलेज के हिसाब से या मेरे कलीग्स या मेरे फ्रेंड्स ये सबका एक्सपीरियंस मिला के मैं मेरे अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बेस में ऑन-साइट अपॉर्चुनिटी की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे इनके इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। तो इनके ऑब्वियसली जहाँ इनके ब्रांचेस है या जहाँ पे, तो उस लोकेशन पे कंपनी होगी, उनकी IT टीम भी होगी, जैसे फ्रांस है या USA है। तो यहाँ पे ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी कम है, मतलब परमानेंट मिलना बहुत मुश्किल है। मिला तो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलता है, लाइक गो फॉर 3 मंथ फॉर अ टीम कोलैबोरेशन, या टीम के साथ मिल के आओ, उस वे में यहाँ पे ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी मिलती है। इट्स वेरी लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन, कभी फॉर अ वीक 2 वीक और समटाइम्स फॉर अ मंथ और 3 मंथ। तो ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी अगर आप सोच रहे हो तो प्रोडक्ट बेस डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन। बहुत रेयर केस में कभी कभी ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है प्रोडक्ट बेस में, बट डिफ़िकल्ट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी मिलना प्रोडक्ट बेस में एज कम्पेयर टू सर्विस बेस। ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, मेरी जर्नी कैसी थी और मैं इंडिया से UK कैसे मूव हुई, इसका एक अलग से वीडियो बनेगा। एंड अगर मुझे कंपनी से नहीं मिला तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे जॉब कैसे मिला, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। सो एज ऑफ नाउ माई वेटेज, इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली सर्विस बेस इज अ गुड कंपनी एज कम्पेयर टू रेदर देन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. So this is about another point. And the next point is also an important about the role, the contribution of a role. So as I said, like प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में टीम साइज छोटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक आप छोटे छोटे एज अ टीम स्मॉल मॉड्यूलर एप्लीकेशन पे काम करते हो रेदर देन सर्विस बेस। सर्विस बेस में कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं, यहाँ पे टीम साइज ज़्यादा होती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से प्रोडक्ट बेस में आपको मोस्टली इंडिविजुअल रोल मिलता है या स्मॉल टीम साइज मिलती है, जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन एज ए इंडिविजुअल ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा आपके स्किल्स ज़्यादा शोकेस करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू सर्विस बेस। यहाँ पे ऐसे टीम साइज मिल जाती है, या अगर नहीं भी मिली तो आप प्रोजेक्ट चेंज का रिक्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा बड़ी टीम है वहाँ पे आपको कलीग्स मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिविजुअल रोल का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए, लाइक व्हाट आर द मेन पॉइंट,
एंड इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू योर डिसीजन कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करनी है कि सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करनी है। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी टू डिसाइड कि किसके बेनिफिट ज़्यादा है ओवर द अदर, एंड देन आपके प्रायोरिटी और आपके लिस्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करनी है या सर्विस बेस्ड ज्वाइन करनी है। सो इसी वीडियो के लिए ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। एंड अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ you want on some another important topic to have a discussion. I will come up with the video on that. So thank you.